CBSE Mathematics Class 11th, Chapter 5, Complex Numbers and Quadratic Equation. Exercise 5.2. Exercise 5.2 स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूँगा। देखिए, यदि कार्टेशियन प्लेन में हम कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो ओ एक्स जो होता है दैट इज इनिशियल लाइन, और ओ पी जो कि रिवॉल्विंग लाइन कहा जाता है और टर्मिनल लाइन. लेट पी रिप्रेजेंट द कम्प्लेक्स नंबर मीन्स द एब्सिसा दैट विल बी इक्वल टू इफ OP makes an angle theta in positive direction with the initial line. That theta in complex number is known as argument or amplitudes of the complex number. And the point here you see in the right angle triangle, the OP, that is known as modulus of the complex number, or you can say the r, the radius you can say, and theta is the argument or amplitudes. So abscissa will be equal to r cos theta, that is x. Here y will be equal to r sin theta. So let x is equal to, complex number is written as x plus iota y, which is non-zero complex number. So x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. Squaring both sides and adding it, you will get r square cos square, r square cos square theta, r square sin square theta. On the other side, you will get x square plus y square. If you take the r square common, so you will get cos square theta plus sin square theta, that is equal to 1. So r will be equal to root of cos square theta, root of x square plus y square, that is a positive value, will be always taken, and it is known as modulus. Means modulus of a complex number is always a positive value. Now the polar form of the complex number, that is represented like this: r cos theta plus iota r sin theta. R has been taken outside as a common, and the value of theta varies from minus pi to pi. Minus pi is a closed interval because it is, you see here, it is a less than, means minus pi is not included, and theta is less than or equal to pi, means this pi is included. Here open interval and it is included. It is closed interval, so it can be represented like this also, minus pi to pi. Theta is measured in radian. जो भी एंगल होगा वो हम रेडियन में ही एक्सप्रेस करेंगे. 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के डिग्री में नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, हम पाई में रिप्रेजेंट करेंगे. और इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव लिया जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव लिया जाएगा. स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल विल बी कंसिडर्ड ऑलवेज. इम्पॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा. हमारे को देखना पड़ेगा कि अगर इस तरफ से स्मॉलर एंगल आ रहा तो वो लिया जाएगा, अगर इस तरफ से आ रहा है तो स्मॉलर एंगल उसको लिया जाएगा. मैग्नीट्यूड में स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल विल बी कंसिडर्ड. द प्रिंसिपल वैल्यू, that is minus pi, is less than theta, and theta is less than or equal to pi. General value will be, we have to just include the principal value, along with that add 2k pi plus theta. That will give you the general value of the complex number. Now proceed further here. The polar representation of the complex number. If z, that is complex number, is non-zero, means not equal to zero, non-zero complex number, z correspond only
one value of theta in 0 to 2 pi. The value of theta is only one value. There will be no two values. Only one value is there in between 0 to 2 pi. And the interval length will be 2 pi. You see, minus pi is less than theta and theta is less than pi. मीन्स यहाँ से लेकर के इस तरफ से अगर चलते हैं तभी भी 2 पाई होता है, और यहाँ से भी लेकर चलते हैं तभी भी 2 पाई होता है. तो 2 पाई का इंटरवल होता है. इंटरवल ऑफ द लेंथ, इंटरवल ऑफ लेंथ 2 पाई. हियर moreover I have just in the first quadrant you see the angles in radian is pi by 6, that is 30 degree, pi by 4 that is 45 degree, pi by 3 that is 60 degree, pi by 2 that is 90 degree. Here 120 degree, 135 degree, 150 degree. So I have represented it by radian also. 2 by 3 pi, 3 by pi by 4, 5 pi by 6. ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है इन रेडियन की वैल्यू. अब नेगेटिव डायरेक्शन में देखिए माइनस पाई बाई 6, माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 3, माइनस पाई बाई 2, माइनस 2 पाई बाई 3, माइनस 3 पाई बाई 4, माइनस 5 पाई बाई 6. तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि एंगल आता है दैट विल बी टेकन इन नेगेटिव, एंड फर्स्ट और सेकेंड में दैट विल बी पॉजिटिव. In this way, let us start the question of exercise 5.2. Find the modulus and the argument of each of the following complex number in exercise 1 to 2. अब देखिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया हुआ है, that is -1 minus iota root 3. Here just to write down just below it z that is complex number x plus iota y. Now x is equal to -1. Here just compare it. Y is equal to minus root 3. Here I have written it here. X is equal to -1. Y is equal to minus root 3. So the modulus of z means complex number will be equal to root of x square plus y square. Here it is -1 whole square plus root minus root 3 का होल स्क्वायर किया है. ओवरऑल हैव टेकन द स्क्वायर रूट. So 1 plus 3 का square root that is root 4 and it is 2. It will be always taken a positive value. The modulus is 2 here. Now और cos थीटा के जगह पर हमने लिख दिया, और की वैल्यू मिल गई हमारे को 2, तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1. देयरफॉर द cos थीटा इज इक्वल टू -1/2. 2 को लाया मैंने इधर, सो cos थीटा इज इक्वल टू -1/2. 2 sin थीटा इज इक्वल टू -√3. sin थीटा इज इक्वल टू -√3/2. अब यहाँ पर देखिए दोनों चीज़, cos थीटा भी नेगेटिव है, sin थीटा भी नेगेटिव है. और यहीं पर मैं बताता हूँ आपको, जब x की वैल्यू -1 में लिया था, y की वैल्यू -3 में लिया था, तो उसी समय हमें पता चल गया था कि थर्ड क्वाड्रेंट होगा. पहले से पढ़ाया जा चुका आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि अगर एब्सिसा भी नेगेटिव है और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, द पॉइंट्स विल बी इन द थर्ड क्वाड्रेंट. नाउ हियर यू सी alpha is equal to tangent inverse y by x. Here the tangent inverse is equal to -√3 by -1. So minus and minus will be cancelled. The tangent inverse that is √3. The alpha will be equal to pi by 3. Now theta is equal to minus pi by 3. pi minus pi by 3 that is -2 pi by 3.
अब वो हमने माइनस क्यों लिया, देखिए अब मैं बताता हूँ। ये थीटा है, यहाँ से लेकर के नेगेटिव डायरेक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में मैं पहले ही बताया था कि हम लोग नेगेटिव एंगल लेंगे। देखते हैं, इधर देखिए नेगेटिव है ये थर्ड क्वाड्रेंट में। सो यहाँ पर ये एंगल जो है मीन्स पॉजिटिव पाई से लेकर के यहाँ तक का एंगल जो है पाई/3 है। पाई/3 में √3 होता है वैल्यू टेंजेंट का, तो अल्फा का मैंने ले लिया पाई/3। अब इसको इंडिकेट करने के लिए माइनस लगा दिया मैंने पहले, इनसाइड द ब्रैकेट पाई माइनस पाई/3, इसको सॉल्व कर दीजिए -2 पाई/3। यदि ऐसे नहीं समझते हैं आप तो आप इधर देखिए माइनस से चलिए, माइनस पाई/2 आ गया और यहाँ पर आएंगे तो आपको वो एंगल मिलेगा -2 पाई/3। देखिए -2 पाई/3, यहाँ पर कॉस की वैल्यू जो है -1/2 है और साइन की वैल्यू है -√3/2। तो ये -2 पाई/3 क्योंकि हमने नेगेटिव डायरेक्शन में चला, और यही एम्पलीट्यूड ये मैग्नीट्यूड जो है, ये मैग्नीट्यूड अगर आप इधर से पॉजिटिव डायरेक्शन में आएंगे देन इट विल बी ग्रेटर देन पाई। देखिए अब यहाँ से आइए तो यहाँ से लेकर के यहाँ पर पहुँचे पाई हो जाएगा, जो कि हमारा जो रेंज है उसका पाई है। देखिए पाई से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से लेकर अगर आप पॉजिटिव में आते हैं इधर से तो पाई प्लस समथिंग, पाई प्लस अल्फा हो जाएगा या पाई प्लस पाई/3 हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको क्या किया है, इस तरफ से लिया है, इसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा देख लीजिए। तो -2 पाई/3 इसकी वैल्यू हो गई। साइन ऑफ थीटा इज नेगेटिव एंड लेस इन मैग्नीट्यूड which fulfill the condition of the given interval, that is minus pi is less than theta and theta is less than pi. Now proceed to the question number 2. Complex number is given, that is -√3 plus iota. Write down x plus iota y. Now compare the x is equal to -√3, y इज इक्वल टू 1। अभी एब्सिसा नेगेटिव है और ऑर्डिनेट पॉजिटिव है। किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। यहीं से पता चल गया आपको, सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नॉलेज है तो आप उसी से इस्तेमाल कर सकते हैं यहीं पर। अभी देखिए मैंने वर्कआउट कैसे किया मॉडुलस को। z इज इक्वल टू √ऑफ मीन्स z ये कहिए या r कहिए, सो -√3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का टोटल स्क्वायर रूट लिया, दैट इज √3 + 1 दैट इज इक्वल टू √4 एंड इट इज 2। सो r cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा, मीन्स हमने वर्कआउट कर लिया r की वैल्यू, दैट इज 2 cos थीटा इज इक्वल टू -√3। So cos theta will be equal to -√3/2, or sin theta that is 2 sin theta that is equal to 1 and sin theta is equal to 1/2। अभी आप देखिए कि ये पहले वैल्यू कहाँ पर पड़ता है, देखिए आप यहाँ पर इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है। और है कॉस की वैल्यू जो आती है यहाँ पर आपका -√3/2, -√3/2 देखिए -√3/2 और साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगा इसमें 1/2। साइन की वैल्यू है यहाँ पर देखिए आप
1/2 cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, -√3/2, 1/2, एंड व्हाट इज द एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन। डिग्री में देखिए 150 है, 150, रेडियन में है 5π/6। तो वही चीज़ है, हमने यहाँ पर वर्कआउट किया है। अब ये जो अल्फ़ा एंगल है, ये हम इस डिग्री से बनाए हैं, तो हमने वो कर लिया है 5π/6। अगर यहाँ से आएंगे तो द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू 5π/6। So theta is equal to this 5π/6 in the second quadrant. Now the next question, that is convert each of the complex numbers given in the exercise 3 to 8 in the polar form. Z, that is complex number, is 1 minus iota, that is x is equal to 1, y is equal to -1। अब देखिए x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एंगल आएगा। सो अभी देखिए, इसको हमने क्या किया, इसको स्क्वायरिंग एंड रेडियस, सॉरी मॉडुलस वर्कआउट किया, दैट इज x² प्लस y² को रूट ले लिया। यहाँ पर देखिए x क्या है 1, y क्या है -1। सो स्क्वायरिंग x एंड y, जस्ट take the square root, that is √2. So √2 cos theta is equal to 1. So cos theta is equal to 1/√2. √2 sin theta is equal to -1. Sin theta is equal to -1/√2. That is in the fourth quadrant. देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट मैंने लिखा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होगा, क्योंकि x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। Now thus the required polar form is √2 हमने बाहर ले लिया, that is modulus r, and cos -π/4 plus iota sin -π/4। यहाँ पर भी देख लीजिए, -π/4, cos की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है 1/√2, माइनस साइन की वैल्यू जो है -1/√2, और यहाँ पर भी यही चीज़ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, that is z complex number is given, that is -1 plus iota. So now compare it and find the value of x, that is x is equal to -1, y is equal to 1, and this angle will be in the second quadrant because x is negative, y is positive. So now work out about the modulus or that is root of -1² plus 1², that is root of 2. So √2 cos theta is equal to -1, that is cos theta is equal to -1/√2. Root sin theta is equal to 1, and sin theta will be equal to 1/√2. अब cos की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो साइन यहाँ पर पॉजिटिव है, cos नेगेटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाए, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3π/4। थीटा विल बी इक्वल टू 3π/4। देखिए 3π/4 यहाँ पर जो मैंने वो दिया है हर एक को, तो इसको सॉल्व करोगे तो वही चीज़ आएगा। कॉस की जो वैल्यू है -√2/2, तो इसको सॉल्व करोगे वो -1/√2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, साइन पॉजिटिव हो जाएगा। Thus the required polar form is
√2 cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। अब देखिए यहाँ से ये जो थीटा की वैल्यू निकाले हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा 3π/4। तो cos थीटा की वैल्यू लिख दिया 3π/4। देखिए यहाँ पर भी मैंने लिखा है 3π/4, पहले भी मैंने इसको दिखाया था आपको, दैट इज 135 डिग्री। ये हो गया आपका 3π/4। यहाँ पर भी देखिए cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4, √2 बाहर ले लिया, दैट इज मॉडुलस। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1। नाउ वर्क आउट मॉडुलस, दैट इज और इट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, दैट इज √2। सो √2 cos थीटा इज इक्वल टू -1, cos थीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन √2। सिमिलरली you work out for this sin theta, √2 sin theta is equal to -1, therefore sin theta is equal to -1/2. Here you see -√3/2 -1/2। अब यहाँ पर मैंने जो रेडियन लिखा है इस तरह से लिखा है केवल कंप्लीट, लेकिन आपको लेना है किससे, क्योंकि इसमें कम्प्लेक्स नंबर को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसका इंटरवल किधर, इधर से है। तो ये आ गया -3π/4। देखिए -3π/4 यहाँ से लेंगे हम -3π/4, क्योंकि इसका जो एंगल होगा ये एंगल मैग्नीट्यूड में छोटा होगा। अगर इधर से आप आओगे इट विल बी ग्रेटर देन पाई से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में गया तो द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म विल इज √2 बाहर लिया, cos -3π/4 प्लस आयोटा साइन -3π/4। दिस इज द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म ऑफ गिवन complex number. Now come to the question number 6. Complex number that is -3 is given. It means that can be expressed like this: -3 plus 0 iota. So x is equal to -3, y is equal to 0. So radius will be modulus, that is r will be equal to modulus of z, you can say, दो -√3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट किया 9 आया, दैट इज 3। सो 3 cos थीटा इज इक्वल टू -3। सो cos थीटा विल बी इक्वल टू -3/3, दैट इज -1। 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज sin थीटा इज इक्वल टू 0/3, दैट इज 0। दैट पॉइंट मीन्स हियर द पॉइंट लाइज हियर, so it will be the pi. Thus the required polar form is 3 बाहर रख दिया, इन ब्रैकेट cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। हम यहाँ पर -π नहीं लेंगे क्योंकि -π इज नॉट इंक्लूडेड, दैट इज द क्लोज इंटरवल, and hence -π will be excluded. So 3 inside the bracket cos pi plus iota sin pi. This will be the required polar form of the given complex number. Now come to the question number 7. Z that is equal to √3 plus iota. This means that the x is equal to √3, y is equal to 1, that is in the first quadrant. So modulus will be equal to root of √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 3 प्लस 1 का स्क्वायर रूट लेंगे 4, दैट इज 2। सो 2 cos थीटा इज इक्वल टू √3। सो cos थीटा इस और cos थीटा की जगह पर मैंने इक्वल टू क्या किया √3, दैट इज x एब्सिसा। सो cos थीटा इज इक्वल टू √3/2,
here 2 sin theta is equal to 1, that is sin theta is equal to 1 by 2. The required polar form is, अब देखिए पहले तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका एंगल क्या होगा। अब देखिए यहाँ से मैग्नीट्यूड में देखेंगे हम इसको, अगर माइनस लेंगे तो इधर से आना पड़ता है। हम यहाँ पर छोटा सा छोटा एंगल देंगे कि किधर से होगा, पॉजिटिव में छोटा मैग्नीट्यूड आ रहा कि नेगेटिव में छोटा मैग्नीट्यूड आ रहा। सो हियर द पोलर फॉर्म, रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2 बाहर रखिए, दैट इज मॉडुलस cos of pi by 6 plus iota sin pi by 6. Now come to the question number 8. That is, complex number is iota only. It can be expressed like this: 0 plus iota. So x is equal to 0, y is equal to 1. ये पॉइंट कहाँ पर लोकेट होगा, देखिए यहाँ पर मैंने लोकेट करके दिखाया है, y एक्सेस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. So this line is imaginary line. Now 1 cos theta is equal to 0, so cos theta is equal to 0 by 1, that is 0. 1 sin theta, that is 1, so sin theta is equal to 1 by 1, that is 1. So theta is equal to pi by 2. Thus the required polar form is, modulus को बाहर रख दिए, that is 1 in bracket cos pi by 2 plus iota sin pi by 2. So the polar form क्या होगा आपका, cos pi by 2 plus iota sin pi by 2. This is the required answer of the question number 8.